Okay. So this is 2020 pattern with you, and I have already specified that the paper will be for 50 marks, external, and 25 marks will be for internal. So in all, there will be 75 marks. Okay. Now this we have already gone to the chapter number 1, that is uh, installation and all those things. We have already gone the features, flavors of Java. We have already the different levels. Nowadays it is in 18th version or 19th version which is going on, so that is also to be done. We have installed Java, I think JDK and JRE we have already installed on a system, and then we have also installed the Eclipse tool for your as a ready reckoner. Then Java development environment we have already set. I have shown you how this JDK and JRE will be working. And Java doc, you can search it. Documentation will be loaded automatically after installation. In chapter number 2, we have worked on the classes and all those things. So class, object creation, how it is being created, how this garbage collector will be working, access modifiers and all those things. It's still pending from my side. Nesting, inner classes, anonymous classes, abstract classes. These are we will be using in the upcoming sessions whenever we are creating some practical assignments over there. Okay. I think so. We have covered with the method overloading, then argument passing. Also, we have covered as far as the method, 2 parameter or 3 parameters. We have done static members. We have created a static function that we have also covered. Then the finalize and all those keywords we will be running in upcoming sessions. This keyword we have used it. Then we have created a object also. We will be talking about how to cloning an object. I have already specified that हम कोई भी क्लास का जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते तो वो 4-5 तरीके से बनाते. So one with using new keyword, second one by using class dot for name, third जो हमने बोला था cloning. Okay, so how this cloning of object can be done, that is duplication of any object can be done by using a clone function. A generic type we will be talking about. So this is actually chapter number 2. Chapter number 3 will be the talking about the classes and interfaces. So the concept which are not covered over here, that will be covered as and when required. So I am again saying that as and when required it will be implemented in your real regular assignments. Okay. And into this we will be talking about the extension of inheritance and all those things. Okay. Chapter number 3 will be focusing on inheritance. Chapter number 4 will be focusing on packages. Chapter number 5 will be focusing on exception handling. 6 number will be focusing on arrays and string concept. 7 number chapter will be focusing on threads. 8 number on collection of different classes, just like a time or a scanner and all those things we have already implemented, but how we will be implementing in more precise way in the upcoming session. 9th number chapter is focusing on user interface, how to create the screens, that is a window screens. Chapter number 10 will be focusing on event handling. Whenever you are doing some operation like clicking, drop down or something like operations, how it will be maintained by using event handler. 11th number talking about the collection framework. This is the most important chapter because this is actually industry is working on. That is your array list of vectors and sets. We have ample number of assignments on this, so this all concepts will be clear very precisely over there. Okay. 12 number will be about the JDBC. So JDBC I am not moving at the end. JDBC will be started very soon. बहुत जल्दी हम JDBC में enter करने वाले. Okay. And 13 number will be your JSP server pages, that you will be creating a JSP pages. So 13 number chapter, and this is the completion of syllabus. So overall, this is a big syllabus we need to cover within 3 months duration. So practically everything will be demonstrated. Theoretically it will be shared with you. So implementation of any concept is most important as thing I think. So from my side, most important approach will be the practical approach. Okay. So shall I move for the further for today's assignments and all those things? Yes. Yes, I want to feedback. Yes, Yes. Okay. Yes. Okay. yes, sir. Okay. Yes, sir. So we'll go for small example of one example. I am expecting the factorial or some mathematical operations. So जिससे आपकी छोटी छोटी concepts clear हो जाएंगे. And this you have to complete today itself at your home. आप जिसके पास कंप्यूटर नहीं होगा तो वो भी उसको यूज कर सकते. So we'll write a program for displaying a Fibonacci series. Okay. So I am launching my Eclipse. Okay. I'm using some older version of Eclipse.
nothing problem with using a current trend, current 2020 or 21 anything. Uh, as I am on 32-bit, that's why I'm using the older versions. Okay, so we'll have small examples, and on that example we will be moving further for implementing some good concepts. Okay. Hi sir, Yes. I have a question. Yes, पूछो. Actually, other than Eclipse हम क्या manually नहीं use कर सकते हैं? मॅन्युअली वापरला तुमचा वेळ जाईल बाबांनो. मॅन्युअली बी दाखवतो मी तुम्हाला करून, Okay, हाच प्रोग्राम मॅन्युअली कसा करा तो भी दाखवतो मी. ओके. इक्लिप्स यूज़ okay करायचं sir. इंटेंशन एकच है. इंडस्ट्री यूज़ करती है. हमें अगर आईडी के ऊपर आ गया तो यू कैन पुट समथिंग इन योर सीवी, रेज्यूमे के अंदर आप डाल सकते कि और कंफर्टेबल विद इक्लिप्स. ओके. कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन म्हणजे उद्या मी डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करके ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे अगर मैंने प्रोग्राम लिखना चालू कर दिया, नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली वर्किंग इन इंडस्ट्री. ऐसा तरीके का प्रोग्रामिंग कभी नहीं होता. ओके. सो अगर मैंने वो सिखाना चालू कर दिया उसका कुछ फायदा नहीं ना. हुँ? जो चलता नहीं वो सिखाने में मजा क्या है. Okay यस. sir. यस. So is it clear to everybody why we are moving towards the ID like Eclipse and all those things? तो ये एरर समझ में नहीं आएंगे आपको सबको. ओके. सो दिस मीन्स माई जावा इज इंस्टॉल्ड. मैंने पहले बता दिया अगर मैंने जावा सी डाल दिया सो इस मीन्स मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है. सो हाउ टू चेक योर सिस्टम, इट इज जस्ट पुट जावा सी. अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल करो जावा. इक्लिप्स इंस्टॉलेशन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो चुके हैं उनको मैं फिर से बताता हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल जावा, and after that you need to install eclipse tool. eclipse tool नेट पे से डाउनलोड करो. द वेबसाइट आई विल बी स्पेसिफाइंग यू, और उसके अंदर भी जाके आप वो कर सकते हैं. ओके. सो वेन एवर यू आर ओपनिंग, सो मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ. दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑलरेडी आई हैव वर्क. सो मैं ये सब कुछ प्रोग्राम्स को बंद कर देता हूँ और हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे. वेन एवर एनी प्रोजेक्ट इज बिन इनिशिएटेड, तो फर्स्ट, सो आई एम क्लोजिंग ईच एंड एवरी प्रोग्राम नाउ फास्ट मध्ये. सो हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं तो कंफर्टेबल बनो. टूल्स के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करो. फिलहाल के दिन में 4-4, 5-5 घंटा इसके ऊपर बैठे तो भी चलेगा. नाउ सी, वेन एवर यू आर वर्किंग विद इक्लिप्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये उसका लेआउट थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है. लेआउट कैसा है इसका लेआउट. ओके. सो अभी इनिशियल स्टेज में मैंने, मेरे पास जो लेआउट है मेरे पास टेढ़ा मेढ़ा होगा. मैंने कंसोल को बंद कर दिया या भी कुछ भी कर दिया तो मेरे पास हर बार क्या होता है कि मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाती है ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर. मेरे को वो लेआउट नहीं दिखा देता. द बेसिक होम पेज हाउ इट शुड बी विजिबल. ओके. सो ये पूरी स्क्रीन है आपके सामने. कुछ भी हो जाए इसके अंदर, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स भी है इसके अंदर मैंने, तो वो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे. बट फैक्ट्री रिस्टोर करना है आपको. ये जीयूआई बेसिक कैसा दिखता है जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसका बेसिक लेआउट कैसा होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 to 5 विंडोज़. तो ये 5 विंडोज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके. नाउ आफ्टर अ लॉन्ग डेज आई हैव स्टार्टेड माई पीसी विद जावा. दैट्स व्हाई इट इज़ एट द बॉटम यू विल सी हियर. यहाँ पर वो कुछ तो भी अपडेट्स कर रहा है. So whatever new things are there in Eclipse, that will be automatically updated because I am connected to the internet. Okay. So ये frequently update करेंगे. whenever it is 100%, my whole Eclipse will be working very smoothly. Though I am using 2018 version, but it is upgraded and updated. So जो भी कुछ हम implement करेंगे that will be applicable to any version of Eclipse. So Eclipse download करने के लिए मैंने उस दिन भी बताया था, it is on Eclipse. You just search on Google Eclipse download फॉर जावा और वो आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा. इफ़ यू वांट यू कैन शेयर, आई विल शेयर सम वीडियोस आल्सो हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स. बट इक्लिप्स इंस्टॉल करने से पहले जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है. ओके. सो हाउ टू स्टार्ट इट. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई सर्वर ऑल्सो बिकॉज मेरी विंडोज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन था तो मैंने उसको बंद कर दिया. ओके. 1 सेकेंड. सो यू नीड टू गो इनटू विंडोज़ और इसके अंदर जो है अपीयरेंस ने पर्सपेक्टिव में जाना है. किस में आना है? पर्सपेक्टिव. आई एम क्लिकिंग विंडो और इसके अंदर मैंने पर्सपेक्टिव में जा रहा हूँ. पर्सपेक्टिव में देर इज रीसेट पर्सपेक्टिव. ओके. नाउ दिस आई एम क्लिकिंग इट. I am resetting the perspective. Automatic the windows which is the default window that will be visible in front of you. Now this is the default window. ये हमारे सामने अभी visible हो चुकी है. Okay. So this is
योर प्रॉपर्टीज़ एंड सर्वर्स और ये सब कुछ जो चाहिए वो हम टॉमकैट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, पर मैं नहीं करूँगा। नाउ वेन एवर यू आर वर्किंग, ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप इसके अंदर बना सकते हैं। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी है, पर अभी फर्स्ट टाइम अगर आप होंगे, फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर यूजिंग, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। इसमें से कोई नहीं आपके सामने रहेगा, सिर्फ एम्प्टी रहेगा। नाउ इन द फर्स्ट टाइम वेन एवर यू आर यूजिंग, जस्ट हैव टू गो फॉर फाइल, न्यू, एंड यू हैव टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट फर्स्ट। पहला क्या बनाना है आपको? प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल है और हमने इक्लिप्स नाम का आईडी को इंस्टॉल किया है। आई विल शो यू हाउ टू चेक हाउ द जावा इज इंस्टॉल। एक तो आप कंसोल पे जाके ये डाल सकते हैं, या फिर सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम्स फाइल में जाना है, देन जावा फोल्डर आपके पास क्रिएट है क्या वो देखना है, और उसके अंदर दो फोल्डर चाहिए। वन विल बी जेडीके एंड अनदर विल बी जेआरई। जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट, जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये किट ही हमें हेल्प करता है कोई भी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, करने के लिए। एंड जावा रन टाइम एनवायरमेंट विल बी रनिंग दोज एप्लीकेशन, जो आपने बनाए किट लेके यूज करके उसको आप रन करने के लिए वो एनवायरमेंट देखेगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव इंस्टॉल्ड, जेडीके ओपन करना है, बिन ओपन करना है, और बिन के अंदर दो फाइल चीज़ें होती है। वन इज जावा सी, दैट इज जावा कंपाइलर जो कंपाइल करता है आपके कोड को, एंड वन इज जावा इंटरप्रीटर। ये दोनों का एड्रेस, ये दोनों आपके ये फोल्डर के अंदर है। इट इज प्रेजेंट इन टू योर सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके फोल्डर, उसके अंदर बिन फोल्डर में है। ये पाथ को हमें सेव करना है, यानी इसको कॉपी करना है। ओके, एंड माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करना है, एंड यू हैव टू गो इनटू प्रॉपर्टीज। एक बार अगर आपने जावा इंस्टॉल किया तो उसको पाथ देना है आपको, जरूरी होता है। ओके, तभी जाके आप कंसोल के ऊपर कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन आई क्लिक ऑन इट, it will be opening me the property window. Okay, so it will be opening me the property window of your computer. और यहाँ पर आने के बाद there is a left hand side, there is advanced system setting, इसको क्लिक करना है। then whenever you are clicking on this one, you will be opening one window which will be with computer name, आपके कंप्यूटर का नाम क्या है। सेकेंड वन विल बी द हार्डवेयर, थर्ड वन विल बी द एडवांस। ये एडवांस टैब में हमें जाना है। विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ 7 हो, फ्लो यही है। विंडोज़ 10 में माई पीसी बोल के होता है, यहाँ पर माई कंप्यूटर बोल के होता है। यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है, और सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ नाम को ऑलरेडी होता है बेसिकली। नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ेगा न्यू बोल के। अगर होगा तो हमें सिर्फ उसको एडिट करना है, और जैसे मैंने बोला कि हमें लास्ट में जाके उसको पेस्ट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, सो देखो यहाँ पर ऑलरेडी है मेरे पास, वो इसकी वजह से मैं उसको करूँगा नहीं। सो ओके, ऑलरेडी दिस पाथ इज़ विद मी। सो ये जो पाथ मैंने वहाँ पर कॉपी किया था वो जाकर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद उसको सेमीकोलन देना है। नाउ अगर नहीं होगा तो लास्ट में जाना है, ध्यान में रखना, बीच में कभी नहीं डालना। यू मूव एट द लास्ट, यू मूव एट द एंड, और यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। जैसे मैंने अभी कॉपी किया ना, उसको पेस्ट करना है, एंड आई हैव टू पुट इट सेमीकोलन। कौन सा पाथ मैंने बोला है? जिसके अंदर हमारा जावा कंपाइलर और जावा इंटरप्रीटर है, जावा सी जावा, दैट इज प्रेजेंट इनटू माय सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जेडीके, जावा फोल्डर के अंदर जेडीके, उसके अंदर बिन फोल्डर में है। ये इसको मुझे पेस्ट करना है, और मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसके बाद मैं उसको ओके बोल दूंगा, एंड आई एम सेइंग ओके, और फाइनली आई विल बी से ओके। सो इसका मतलब मेरा जावा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं इसको बंद कर दूंगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपने इंस्टॉल करने के बाद इमीडिएटली जावा से मत डालो, इसको बंद करना है, एंड नेक्स्ट टाइम उसको फिर से ओपन करना है, क्योंकि वो थ्रेड उसको सर्च नहीं कर सकता। सो CMD से आप उसको फिर से ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड यू जस्ट पुट ये जावा सी, उसको मिल रहा है क्या नहीं, जस्ट पुट जावा सी एंड प्रेस एंटर। सो जावा विल बी installed on your system. Okay, now one more thing I want to specify is that whenever you are working with java space minus version, मैं इसको वर्जन देख रहा हूँ उसका कौन सा वर्जन है, this will be telling me which version I am using. So currently I am using 1.8 version. Now see, whenever I am working with Eclipse, minimum version supported by Eclipse is 1.8. 1.8 वर्जन आपके पास इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ओरेकल की वेबसाइट पे जाओ, JDK JRE का सेटअप डाउनलोड करो, एंड यू कैन इंस्टॉल इट। ओके, यू कैन डाउनलोड
इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होगा तो मैंने क्या आपको ये मेरे मेल आने के बाद, सबके मेल आने के बाद मैं एक फोल्डर जनरेट करता हूँ, उसके अंदर मैं शेयर करता हूँ सबके लिए. सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट ऑल्सो. ओके, सो दिस मीन्स आई एम यूजिंग द वर्जन 1.8 और वही वर्जन हम यूज़ करेंगे इक्लिप्स के अंदर. एज्यूम करेंगे कि हमने इक्लिप्स को इंस्टॉल कर दिया. फर्स्ट ध्यान में रखना, जावा शुड बी इंस्टॉल्ड देन इक्लिप्स कैन बी इंस्टॉल्ड. पहला जावा इंस्टॉल करना है, पाथ देना है, सेकेंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप आपको इक्लिप्स को डाउनलोड करना है और उसको भी इंस्टॉल करना है. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. मेरे ख्याल से सबको पता है कि हाउ टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर. इट्स जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ चेंज नहीं करना है, जो उसने प्रेफरेंस दिया है उसी हिसाब से जाना है. ओके, and now I am creating my new project. So here I am creating new and I am seeing which type of project I want. तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं. स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, आप EJB प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मैवन प्रोजेक्ट बना सकते हैं. तो आपको यहाँ पर ने का जावा प्रोजेक्ट बनाना है. तो यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं होगा तो हमेशा आदत डालो कि यू ऑलवेज क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट. ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ क्लिकिंग ऑन द प्रोजेक्ट. एंड उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल्स हैं. ओके, तो ये ऊपर में जो होता है दैट इज जावा प्रोजेक्ट. अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो डरना नहीं है, जावा को क्लिक करना है, दिस एरो. और यहाँ पर भी देखो वही है जावा प्रोजेक्ट. सो आइदर यू कैन यूज दिस जावा प्रोजेक्ट और आप उसकी पूरी हायरार्की में यहाँ पर जाके उसको क्लिक कर सकते हैं. सो आई एम क्लिकिंग दिस बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन जावा. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस जावा प्रोजेक्ट. अगर आप वेबसाइट बना रहे तो इट विल बी वेब, इट विल बी वेब, इट विल बी डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक, आपकी चॉइस है. तो हम अभी फिलहाल वेबसाइट नहीं बना रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो वी विल बी गोइंग इनटू जावा और जावा के अंदर हमने जावा प्रोजेक्ट को क्लिक कर देना. आई एम सेइंग नेक्स्ट. सो फर्स्ट विंडो विच विल बी विजिबल दैट विल बी द प्रोजेक्ट नेम, कौन सा प्रोजेक्ट है. ओके, सो मैं यहाँ पर मैं उसको नाम दूंगा जो मुझे चाहिए. सो आई एम सेइंग बैच, आपकी जो बैच है दैट इज 20, 21, 22. ओके, 20, 21, 22 बैच है हमारी एंड इट इज़ ऑफ जावा. जो आपको जो नाम देना है इट विल बी, आप आपका खुद के नाम का प्रोजेक्ट बनाओ, नो प्रॉब्लम. JRE जैसे मैंने बोला जावा ऑटोमेटिकली ये आपको सर्च करेंगे, आपको कुछ करना है. अगर जावा आपके इंस्टॉल है तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन JDK का वर्जन कौन सा यूज करें. वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन नॉट एंटरप्राइज एडिशन. तो स्टैंडर्ड एडिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. JRE कौन सा आपका, मैंने जैसे बोला ना जावा इंस्टॉल होने के बाद दो फोल्डर्स बनते हैं, वन इज JDK एंड JRE. जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, वन इज JDK and one is JRE. We are version 1.8, so the same thing will be available over here. So it's version 1.8 and this is version JRE 1.8. ये हम यूज कर रहे हैं. कहाँ पर कुछ क्लिक नहीं करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. डायरेक्ट फिनिश मत करो, हमेशा याद में रखो वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. सो नेक्स्ट को क्लिक कर दिया हमने. ओके, नाउ नेक्स्ट होने के बाद इट विल बी क्रिएटिंग दिस वन ऑटोमेटिक. ये फोल्डर आपके सामने यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, बट आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर आपको सोर्स फोल्डर क्रिएट होता है. देयर इज नथिंग इनटू सोर्स फोल्डर, सी दिस, देयर इज नथिंग इनटू सोर्स फोल्डर. और ये प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर किया जाता है विद डिफरेंट लाइब्रेरीज. ये लाइब्रेरीज होते हैं जो आपको जावा रन करने के लिए काम में आती है, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. So these all libraries are there automatically. It will be configured with your source project, with your folder project name. Is very simple. My project number is bash 20, 21, 22 Java. Okay. ये सिर्फ देखना है आपको, इसको अंदर कुछ एडिट मत करो, कुछ मत करो. सिर्फ देखने के लिए मैंने बताया कि आई जस्ट क्लिक चेक इट व्हाट इज एग्जैक्टली देयर इनटू दिस. और नीचे देयर इज एन आउटपुट फोल्डर कि आप जो भी क्लास फाइल बनाएंगे कंपाइल होने के बाद इस बिन फोल्डर में वो क्लासेस बनना चालू हो जाएंगे. सो ये डेस्टिनेशन है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर एक बिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी पूरे आउटपुट के फाइल्स जाके स्टोर होने वाले. यानी कंपाइल करने के बाद जो भी फाइल बनता है वी कॉल इट एज एन आउटपुट फाइल. Is it clear to everybody? Yes or no? Yes, I want to reply. Yes or Sir. no? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now I will be clicking on this finish button. Now see this. This will be saying open perspective. Open perspective देखो राइट साइड में मैंने देखा, देखो यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव. देखो ये पर्सपेक्टिव है, आप वेब एप्लीकेशन है, विंडोज है, क्या है. पर्सपेक्टिव से यानी क्या, आप किस तरीके की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. इक्लिप्स टूल इज यूज फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन. हाँ, तो अलग अलग एप्लीकेशन आप बनाते हैं. नाउ दिस इज पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव मतलब क्या, अभी आप जावा का प्रोजेक्ट बना रहे एंड यू विल बी ओपनिंग प्रोजेक्ट सिनारियो, यानी प्रोजेक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो आपका चेंज हो जाएगा. वी कॉल इट एज अ पर्सपेक्टिव. तो वी नीड टू गो क्लिक ऑन दिस ओपन पर्सपेक्टिव. ऑटोमेटिकली इट विल बी ओपनिंग द पर्सपेक्टिव. मतलब क्या, ये हमारा देखो दिस इज सिंबल, दिस इज जावा पर्सपेक्टिव. ओके, दिस विल बी ओपन. यहाँ पर जाएंगे हम
अपीयरेंस में जाएंगे, नहीं दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, नहीं हो जाएंगे तो यू कैन रिसेट इट पर्सपेक्टिव। ओके, तो मेरे सामने वो स्क्रीन आ जाएगी। ऑलरेडी वी आर इन जावा सेटअप। ओके, नाउ सी दिस इज ओपनिंग माई पर्सपेक्टिव। यहाँ पर क्लिक करो, इट इज जावा, और उसके बाजू वाला है दिस इज J2EE। देखो राइट साइड में, आई एम जस्ट मूविंग माई कर्सर टूवर्ड दिस राइट साइड, दिस इज व्हाट जावा। ये हम इस पर्सपेक्टिव में, अगर इसको हमने क्लिक किया ये वेब में हो जाएगा, विंडोज में जाएगा। ओके, विंडोज मतलब क्या, हम कुछ वेबसाइट बना रहे, तो इट इज एंटरप्राइज एडिशन जावा EE। ओके, एंटरप्राइज एडिशन, दिस इज प्लेन जावा एप्लीकेशंस। ओके, नाउ दिस इज माई प्रोजेक्ट। इसके अंदर सोर्स फोल्डर है, मेरे को सिर्फ उसको राइट क्लिक करना है, सोर्स फोल्डर को। कौन से फोल्डर को? सोर्स फोल्डर को, SRC नाम के फोल्डर को राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, न्यू। And now you need to select, no project, no like this, you just have to create one class file. You need to create one class file. Just I'm clicking on this class file. It will ask me क्या नाम देना है इसको। So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके की क्लासेस बनाना है। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट है तो आई एम सेइंग वेलकम। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वेलकम हम पहला चालू करें, सो आई एम सेइंग वेलकम। और आपको उसके अंदर मेन फंक्शन चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर, यानी यही प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर मेन फंक्शन हमारा रहने वाला है। एंड आई एम सेइंग फिनिश। ऑटोमेटिकली द कोड विल बी जनरेटेड इन फ्रंट ऑफ यू विद मेन फंक्शन। अभी मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट में वेलकम टू जावा बोलना है, तो आई एम यूजिंग शॉर्टकट की SYS सिस्टम डॉट आउट ऑन कंट्रोल स्पेस शॉर्टकट। आपको टाइप करना है तो यू कैन गो फॉर टाइप ऑल्सो, फॉर टाइप से आप टाइप ऐसे कर सकते हैं। ओके ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड आई विल बी राइटिंग लाइक दिस, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। ओके, सो इसको फॉर्मेटिंग करना है, जस्ट क्लिक कंट्रोल A और राइट क्लिक करना है। इसका फॉर्मेट कहाँ है? सोर्स, सोर्स में जाना है और फॉर्मेट बोलना है। फॉर्मेट मतलब क्या? सिस्टमैटिक दिखाई देगा, एक के नीचे एक दिखाई देगा। मैं इसी फॉन्ट आपको विजिबल नहीं होगा, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन एडिटर एंड आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द फॉन्ट। ओके, तो आपको ये फॉन्ट भी दिखाई देगा अभी, एडिटर आई एम इंक्रीजिंग द फॉन्ट। क्या कहाँ पर है? एडिटर में जाना है एंड जूम इन करना है। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज विजिबल टू एवरीबडी। द कोड इज वेरी सिंपल, वी हैव क्रिएटेड अ क्लास। ध्यान में रखना है, जावा फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, इट इज केस सेंसिटिव। सो आई एम यूजिंग वेलकम, सो वेलकम शुड बी इन अपर केस, W शुड बी इन अपर केस। अगर क्योंकि मैंने फाइल का नाम W अपर केस में लिखा है, इसके सामने स्टार दिया है, मतलब क्या? इट मीन्स इट इज हैविंग मेन फंक्शन इनटू दैट। सो ये मेरा मेन फंक्शन, और ये मैंने इसके अंदर मेरा कोड लिख दिया। ओके, सो इट इज देयर। नाउ आई वांट टू रन इट, सो आई हैव सेव इट, सो कंट्रोल S से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यू कैन क्लिक ऑन एनी बटन हियर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये बटन आप उसको क्लिक कर दो, इट विल बी सेव्ड। एंड नाउ आई एम वांट टू रन इट, सो देयर इज रन, यू कैन क्लिक ऑन दिस वन। शॉर्टकट बटन इज कंट्रोल F11, इससे भी आप रन कर सकते हैं, इसको क्लिक करके भी आप रन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक विंडो बटन है ग्रीन कलर का, आप उसको क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सो नाउ आई एम क्लिकिंग दिस वन ऑटोमेटिकली and it will be running. Okay, so it will be compiling and it will be running the program. Now see at the bottom you are getting this output. Now this is my console, see this is a console and getting the output like this, welcome to Java programming. Okay, अगर आपको और कुछ देना है तो just copy and paste a message, batch 2021-22 welcome you all. Okay, and just आई एम सेविंग द फाइल, और मैं इसको रन करने का सिर्फ ये बटन को प्रेस कर रहा हूँ, सो इट विल बी गिविंग मी आउटपुट एट द बॉटम। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। कोड में अगर कोई गलती हो गई मेरे से, मैंने सिस्टम को S लोअर केस में डाल दिया, सो इट विल बी शोइंग मी एरर। और मैं यहाँ पर देखो, उसको सिर्फ एरर कर्सर उसके ऊपर लेके जाने के बाद वो मुझे बताएंगा कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। सो क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, जिसको वेरिएबल उसने कंसिडर किया है, सो एग्जैक्ट लोकेशन आपको एरर का समझ में आएगा, एंड इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू राइट अ कोड। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रोग्राम। ना अगर ये कंसोल बेस होगा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दूसरा तरीका है, मैंने ये कोड को कॉपी कर देता हूँ। आई एम ओपनिंग माई नोट पैड, ये मैनुअल तरीका कैसा होता है। ओके, सो दिस इज मैनुअल वे। 1 सेकेंड, आई एम ओपनिंग माई एडिटर। इसमें सब कोड्स मेरे जो PHP का है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ऑल नीड टू बी क्लोज। So okay, this is closing. So okay, now henceforth I will be using this one, so file new, और आपको कौन सी फाइल बनानी है उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। So this is I want to make it as hello file, so
ऐसा एक तरीका है मैनुअल। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ नाम, नाउ आई एम सेविंग इट, सो कंट्रोल सेव, और मुझे कहाँ पर सेव करना है, डेमो है, ये डेमो है। आई वांट टू सेव इट इनटू डी ड्राइव। ओके, सो डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाता हूँ विथ न्यू फोल्डर, मैं इसको नाम देता हूँ जावा ऐप। ओके, जावा ऐप नाम का मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर ये फाइल को सेव कर देता हूँ। ध्यान में रखना सेव करते समय दिस इज मैनुअल वे है, मैंने वो डायरेक्ट दिखाया, ये मैनुअल हेलो नाम की मेरी फाइल है, डॉट जावा नाम की से मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेविंग दिस इनटू डी ड्राइव, देखो मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग इट ऑन डी ड्राइव। आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर कॉल्ड एज जावा ऐप, और इसके अंदर मेरी ये फाइल है जावा। ओके, नाउ इसको मुझे मैन्युअली कंपाइल करना है, सिंपल है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है cmd। नाउ दिस इज माय कमांड प्रॉम्प्ट एंड दिस इज माय प्रोग्राम वे जहाँ पर मैंने इसको सेव किया है, और तीसरा मेरा प्रोग्राम क्या है, ये मेरे फाइल का नाम है हेलो। ओके, सो आई विल बी ओपनिंग दिस वन, सो वन सेकेंड, दिस इज माई डॉस प्रॉम्प्ट, दिस इज माई फोल्डर ऑल्सो। ओके, दिस इज माई फोल्डर, दिस इज माई फाइल। अभी मुझे जाना है ये मेरी फाइल कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज माई फाइल प्रेजेंट टू डी ड्राइव, तो मुझे हर बार जाना पड़ेगा D:, ओके, उसके अंदर एक फोल्डर है, दिस इज जावा ऐप नाम का फोल्डर, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, CD इज टू go into that folder, so it's java app। okay, so I will be entering into my D drive। okay, अगर मैंने dir डाल दिया डायरेक्टरी, तो मेरे समझ में आएंगे कि मेरी ये फाइल hello.java नाम की फाइल है। okay, ये मैनुअली आप फिजिकली देख सकते हैं, बट ये आप कंसोल के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी फाइल उसके अंदर है। ओके, दिस hello.java। अभी मुझे इसको कंपाइल करना है, सो जावा सी ऐसा देखना है, और देख हमारे पास जावा इंस्टॉल है क्या वो हमें दिखाई देता है, कॉन्फ़िगर है क्या, देखो हमारे सामने ऐसा आ गया, इसका मतलब हमारा कंपाइलर रेडी है कंपाइल करने के लिए। CLS में प्रेस कर रहा हूँ फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, एट द बॉटम आई हैव एंटर्ड CLS मतलब क्लियरिंग द स्क्रीन। ओके, अभी ये फाइल को मुझे रन करना है, तो पहले उसको कंपाइल करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको रन करना पड़ेगा। तो हाउ टू कंपाइल इट, जावा सी कंपाइलर स्पेस, नेम ऑफ माई फाइल इज वॉट, हेलो। व्हाट इज द नेम ऑफ माई फाइल, यस हेलो हेलो, हेलो जावा। यस hello.java। सो आई एम केस सेंसिटिव है, हेलो जो नाम मैंने सेव किया तो वही नाम दे रहा है। इट एच इज अपर केस, सो आई एम यूजिंग एच अपर केस HELLO.java। ओके, एंड देन आई एम सेइंग एंटर। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कंपाइल करके यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर एक hello.class फाइल बन चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली इट इज क्रिएटिंग, इसका मतलब मेरा कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने यहाँ पर गलती की, एज्यूम करवा, देखो यहाँ पर मैंने गलती की, इसके वजह मैंने इसको एस कर दिया छोटा, और इसको मैंने बंद कर दिया। अभी मैं क्लास फाइल को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ बिंग क्रिएटेड, तो ओके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो मेरी ये हेलो फाइल है जिसके अंदर एरर है। सो अगर मैं फिर से लिखता हूँ जावा सी एंड स्पेस hello.java, ऐसा मैं लिखता हूँ, एंड मैंने पुश एंटर। अगर एरर होगा तो मुझे वहाँ पर ही एरर दिखाई देता है, ये यहाँ पर ये उसने एरर दिखाया, एरर नंबर लाइन नंबर 8 में एरर है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, सो दिस इज लाइन नंबर 8, ये वाले इसमें हमने डाला था ना। मैं इसको ओपन कर देता हूँ विद एडिटर, वन क्लिक, इसमें एडिटर में ओपन कर देता हूँ। नाउ सी इट इज एस इज इन लोअर केस एंड इट इज शोइंग दैट दिस एरर इज एट लाइन नंबर 8, ऐसा इसने बोला है, लाइन नंबर 8 में एरर है। देखिए जावा 8 मतलब क्या है, लाइन नंबर 8 में एरर है। तो यहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने उसको सुधार ली। ओके, आई एम सेविंग द फाइल, मैंने इसको बंद कर दिया, और फिर मैं यहाँ पर उसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी hello.java। तो जब जाके ये कंपाइल होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली java.class फाइल hello.class फाइल विल बी क्रिएटेड मैन्युअली। ओके, जैसे कंपाइल होता है ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब मुझे इसको रन करना है, इट्स वेरी सिंपल, जावा स्पेस और फाइल का नाम क्या है, हेलो। अभी डॉट क्लास बोलना नहीं, अभी नॉट जावा बोलना नहीं, डॉट क्लास। नाउ दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल हेलो, एंड नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर। सो ये मुझे जो आउटपुट लिखा था वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है, दिस इज वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग बैच 2021, वेलकम यू ऑल। ओके, दिस इज मैनुअल टेक्निक, यस एवरीवन गेटिंग? Yes, sir. यस सर। अभी ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, हर बार आपको जाना पड़ेगा सी ड्राइव में, डी ड्राइव में जाओ, फिर जाके फिर एरर आने के बाद कौन से लाइन में फिर से फाइल ओपन करो, ये थोड़ा टफ लगता है। हाँ यार, इंडस्ट्री में ऐसा कोडिंग नहीं होता, इसी वजह से वी आर मूविंग इनटू दिस इक्लिप्स, इट्स वेरी सिंपल। हमारा इंटेंशन वही है, अगर मैंने गलती की तो मुझे गलती वहाँ पर ही दिखनी चाहिए।
आगे जाके कंपाइल करके नहीं, क्योंकि गलती जब तक होंगी तब तक ये प्रोग्राम आगे जाएगा नहीं, जब तक हम गलती निकालेंगे नहीं इसके अंदर की कुछ एरर्स निकालेंगे नहीं तब तक। ओके, सो इक्लिप्स से हमें फ़ायदा हो जाएंगे कि हमें ऑन द स्पॉट एरर्स समझ में आएंगे, दिखाई देंगे, उसके लिए हम अल्टरनेट ऑप्शंस वहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं हम। ओके, एंड आउटपुट भी हमें बाहर कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, आउटपुट भी हमें वही स्क्रीन के अंदर नीचे हमें दिखाई देगा। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Sir, but I'm using Spring Framework. Then it's fine or not? कोई Download प्रॉब्लम नहीं, कोई Eclipse. फ्रेमवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं। स्प्रिंग हम विंडोज Okay, में sir. जा रहे नहीं, मैं देखो वी आर, Same like Eclipse, sir. But you said download only Eclipse. That's why I'm asking. नहीं स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करें, पर स्प्रिंग इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो हमें Yes, हमारा sir. But पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं गिरेगा। हाँ. कोई फर्क नहीं गिरता, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आपका प्रोजेक्ट जो आपने यूज किया ना यहाँ पर, जैसे बोला न्यू प्रोजेक्ट मैंने बोल दिया, तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है इक्लिप्स वाला होगा, तो दैट इज नॉट वेब, इट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन एक्चुअली। हम No, जो sir. चालू They कर, give chance to console-based application also. यस यस, दे गिव चांस, देन नो इशू अबाउट दैट, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू दैट Okay, आल्सो, नो प्रॉब्लम। okay, okay. Okay, I think this is clear to everybody now. Okay, that we have started with this small application. Now I want to create another file. Now see, it is automatically creating a default package over here. Okay, तो हमें कुछ नहीं करना, सोर्स फोल्डर को राइट क्लिक करना है, या फिर इस डिफॉल्ट फोल्डर को क्रिएट किया तो भी चलेगा, राइट क्लिक न्यू, और हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, सो अभी एग्जाम्पल्स लेंगे हम। कौन सा एग्जाम्पल लेना है? कैन एनीवन टेल मी विच एग्जाम्पल यू आर एक्सपेक्टिंग? आपने एग्जाम्पल्स किए हैं पहले वाले या नहीं किया अभी तक? मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे लास्ट वीक में 9 असाइनमेंट्स, क्या आपने किसने किए क्या वो? यस, हो केले सर. सगळ्यांचे कंप्लीट झाले? न्यू स्टूडेंट जो ऑनलाइन ज्वाइन हो चुके हैं, डू यू हैव एन आइडिया कहाँ पर असाइनमेंट की लिस्ट है, कहाँ पर है? No, sir. नो, सो आई एम शेयरिंग अगेन यू माई स्क्रीन। ब्राउजर के ऊपर जाना है, 1 सेकेंड। ओके, यू जस्ट गो ऑन वेबसाइट गूगल, ये ध्यान में रखना है आपको। एड्रेस बार में जाना है, 1 सेकेंड। Okay, and you just put it over here, the website called as IBMRD .gnomio.com। हाँ, ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी शेयर की है आपके ग्रुप के अंदर पहले वाले, उसको सिर्फ क्लिक करना है। यू विल बी लैंडिंग इनटू द पोर्टल। इसका यूज़र नेम पासवर्ड भी मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है, जिसने देखा है उनको पता है, जो नए हैं फर्स्ट टाइम, उन्होंने अभी तक क्लासेस भी अटेंड नहीं किए, और जो ग्रुप के ऊपर भी देखते नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फर्स्ट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट शेयरिंग एनीथिंग लाइक दिस वन। ओके, सो IBMRD.gnomio के ऊपर जाने के बाद 1 सेकेंड, इट इज जस्ट website will be visible in front of you, 1 second। Okay, now this is you have to go into login, all notes everything is available in front of you, you put a username। उस दिन मैंने बताया था यूजर नेम क्या है, इट इज, किसको पता है ध्यान में? यूजर, व्हाट इज द यूजर नेम? कैन एनीवन टेल मी? User 2021. यूजर यू, यूजर 2021, एंड पासवर्ड ऐसा ही है, बस इसका यू जो है अपर केस में है और बीच में @ है। सो अगेन पासवर्ड विल बी यू इन अपर केस, यूजर @2021। तो मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ, एंड आई एम जस्ट सेइंग लॉग इन। नाउ यू विल बी ऑन डैशबोर्ड ऑफ MC डिपार्टमेंट, और इट इज़ ओनली फॉर जावा। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज ओनली प्लेटफॉर्म फॉर जावा। सो एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। डैशबोर्ड, यहाँ पर आपके सामने ये जावा आ जाएगा, जावा MC फर्स्ट ईयर, उसको सिर्फ क्लिक करना है। एंड इसके अंदर सभी मेरे ऑलरेडी जो पुराना कंटेंट है वो सबको दिया मैंने, इसके अंदर सब नोट्स भी अवेलेबल है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस वन।
सो ऑल टॉपिक्स आर देयर. कोर्स कंटेंट में सभी थियोरेटिकल पार्ट मैंने इसके अंदर कवर किया है. आपको लग रहा था यू कैन सर्च द थियोरेटिकल पार्ट, जो जो थियरी हमने कवर की है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. यू कैन रीड इट एट एनी मोमेंट. नाउ इन दिस एट द टॉप देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज अ प्रोग्राम लिस्ट फॉर सबमिशन इन 200 पेजेस नोटबुक. यानी आपको 200 पेजेस नोटबुक बनानी है, उसके अंदर कुछ असाइनमेंट्स आपको रन करने के बाद लिखने हैं. दिस इज सेपरेट 200 पेजेस नोटबुक दैट यू हैव टू सबमिट एट द एंड ऑफ दिस सेशन. यानी सेमेस्टर के बाद ये आपको सबमिट करना है मुझे इवैल्यूएशन के लिए. इसके ऊपर आपको 25 मार्क्स है. ओके, सो दिस विल बी इवैल्यूएशन फॉर प्रैक्टिकल आल्सो एंड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट आल्सो. तो वहाँ पर भूलना नहीं. ओके, ये आपको ये यहाँ पर इंडेक्स देखो, प्रोग्रामिंग इंडेक्स डॉट PDF है, इसको आपको क्लिक करना है. एंड दिस इज जस्ट एन सबमिशन असाइनमेंट्स. प्रोग्राम की असाइनमेंट जो है दैट इज विल बी स्पेसिफाइड. ओके, और दूसरी एक जो असाइनमेंट है वही फोल्डर में आपको दिखाना चाहता हूँ वेबसाइट के अंदर. दूसरी एक असाइनमेंट है that will be somewhat different. So again I am moving on dashboard. और यहाँ पर जो है दिस इज जर्नल असाइनमेंट, जर्नल इंडेक्स. इसी में से कुछ आपको जर्नल में लिखने पड़ेंगे. इसी में के कुछ आपको जर्नल में लिखने पड़ेंगे. सो दिस इज द असाइनमेंट लिस्ट. 1 second, दिस इज ऑलरेडी डाउनलोडेड. तो दिस वन. See in this there are two. One thing is that this is journal index. इसका कलर थोड़ा अलग है. ये आपको जर्नल में लिखना पड़ेगा. दिस इज सबमिशन ऑफ जर्नल. और जो 200 पेजेस का है दिस यू हैव टू सबमिट इन योर नोटबुक. 200 पेजेस सेपरेट नोटबुक. प्रोग्राम्स करना है, रन करना है. रन करने के बाद आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, बाकी कुछ करना नहीं. ओके, एंड दिस इज लाइक दिस वन. एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद 9 नंबर. आई थिंक सो. The regular student, have you completed? I want a feedback from your side. क्या आपने ये complete किए हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Those who have Yes, sir. those who have completed, you just share your name in chat box so that I can understand that you have done. Okay. को किसने किसने share किया है? You just tell me the name. Yes. आई वॉन्ट योर नेम्स. किसने किसने कंप्लीट किया उन्होंने से बताओ कि ये असाइनमेंट जो थे सर इसमें से हमने ये कंप्लीट किए हैं. तभी मैं आगे जाऊंगा. एंड अदरवाइज आई नीड टू स्टॉप समवेयर एल्स. मुझे समझना चाहिए कि आप कर रहे क्या. ओके, सो विल स्टार्ट फॉर द डे. अभी आई एम एक्सपेक्टिंग वी आर रनिंग विद द टाइम. सो today those students who have joined today first time online need to complete. Now you need to go and download this assignment list. पहला जो मैंने बताया कि ये प्रोग्राम की लिस्ट आप डाउनलोड करो. इट इज़ ह्यूज नंबर. ओके, इट इज़ क्लोज टू 84 असाइनमेंट्स आर ऑलरेडी बीन सेटल्ड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे असाइनमेंट्स में हम इधर लैब सेशन में यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ ऑनलाइन सेशंस में. ओके, तो ये आपको एज अ होमवर्क भी दिए जाएंगे कुछ असाइनमेंट्स. और ये आपको मिनिमम इतने असाइनमेंट्स तो आपको इसके अंदर लिखने ही है. दिस इज 84 मिनिमम नंबर है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर असाइनमेंट विल ऑल्सो बी शेयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. डेमोन्स्ट्रेशन विल बी डन इन फ्रंट ऑफ यू. कोड विल बी रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. टाइम आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उस तरीके उसके बाद हम प्रोग्राम को मैं डायरेक्टली टाइप करके रखूंगा. बिकॉज फिर से टाइप करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. एक्सप्लेनेशन विल बी डन ऑन ऑल द प्रोग्राम्स विच आर बीन रिटन ओवर देयर. वो हम यहाँ पर करेंगे. इनिशियल स्टेज में वी विल बी आई विल बी वेरी स्लो. But as the days will be moving fast, we will be running for writing very fast code and implementing the code very precisely. Okay, so today I am expecting all students who have joined today go and install Java on your PC, install Eclipse on your PC, and download this assignment list. If it is possible, you can go for writing the code for that. नहीं होगा, from tomorrow onwards we will be continuing for writing an assignments, demonstrating assignment in front of you. For the day only I am expecting जिसने assignment complete नहीं किए होंगे जो classes को regular आए today you complete it. and जो नए आज join हो चुके हैं उन लोगों ने आज आपके घर के PC में लैपटॉप में कहाँ पर भी हो जावा और इक्लिप्स को दोनों को इंस्टॉल करो and you start your journey to Java. Okay, so shall we stop for the day now?
Yes, any doubts, any questions? If you have, you can speak with me now. सर आया हो क्वेश्चन। वो Yes, जर्नल का जो है वो अलग करना है क्या, मतलब 200 पेजेस से? yes, because that is a practical evaluation. That उसके लिए वो जर्नल कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि